اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے اسم اللہ ذات کے تصور پر۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیشتر بار یہ بات کر چکا ہوں، اپنے ناظرین سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ جو خالق کائنات ہے، رازق کے کائنات ہے، اس پروردگار بحر و بر کے خربوں نام ہیں، اربوں نام ہیں، بے شمار نام ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے صفات کی، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی، اس کے اسماء کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 99 اللہ رب العزت کے اسم مبارک صفاتی نام موجود ہیں، اور ذاتی جو اللہ رب العزت کا اسم ہے وہ ہے اسم اللہ ذات۔ جب کہ بندہ، یہ تمام عارفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارے پیر و مرشد نے حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہامات میں بھی لکھا، اور دیگر اولیاؤں نے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ خصوصاً ان کو پتہ ہوگی جو اہل طریقت لوگ ہیں، جو تصوف کو، روحانیت کو سمجھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی آپ صفاتی اسم پر جب توجہ کرتے ہیں، اس کا تصور کرتے ہیں تفکر کے ساتھ، یعنی فکر کے ساتھ، تو اس صفاتی اللہ کے اسم کا جو جمال ہوتا ہے، جو صفت ہوتی ہے، وہ بندہ کے ظرف کے مطابق بندے میں سما جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یعنی اس کے معنی اللہ بڑا مہربان ہے، تو اللہ کی مہربانی والی صفت بھی وہ بندے میں آ جائے گی۔ یعنی کہ وہ بندہ، جو بندہ اس میں رحمان کا وظیفہ کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ پھر اس کا تصور کرتا ہے، تو اس رحمان کے تصور سے، تفکر سے اس کو پھر وہ مہربانی والا مقام مل جائے گا، یعنی اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ مہربان ہو جائے گا، اور اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ مہربان ہو جائے گی۔ کوئی بندہ کرتا ہے یا علیمو، اے علم والے، تو جو بندہ علم والے، اللہ کی یہ اسم کی بعض تسبیح کہتے ہیں، جبکہ ہمارا سروری قادری سلسلہ تصور، یعنی اس کا تصور اپنے وجود پر کرتا ہے، اپنے دل پر اس کو نقش کرتا ہے، اور کچھ دیر اس کا تفکر کے ساتھ اس کا تکرار کرتا ہے، اس اسم کا اپنے دل کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر، تو اللہ رب العزت اسم علیم یا اسم رحیم یا اسم کریم کے صفت بندے کے ظرف کے مطابق اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بے شمار ناموں میں اللہ کا جو اسم اللہ ہے، جو شروع سے ہی قرآن مجید میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا، تو اللہ کی صفات بندہ میں آ جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اسم اللہ ذات، جو اللہ کا ذاتی اسم ہے، جب کوئی بندہ طالب صادق اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہو، اسم اللہ ذات وہ اسم ذات ہے جو اللہ کا ذاتی اسم ہے، اور جو ذاتی اسم ہو نا، اس میں ٹوٹل سارے صفاتی اسم اس ذاتی اسم میں موجود ہیں۔ یعنی اگر کسی بندی نے رحمان کہا تو رحمان اللہ کی صفت ہے، کسی بندی نے رحیم کہا، بندے نے رحیم کہا، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ، تو یہ اللہ کا ذاتی اسم ہے، تو اس میں اللہ کے سارے رحمان، رحیم، حی و قیوم، وارث، واجب، ماجد، یا حی یا قیوم، ٹوٹل نا وہ اس میں اللہ ذات میں آ جاتے ہیں۔ عارفین نے لکھا کہ جب کوئی طالب صادق، سچا طالب صادق، اب میں طالب صادق پر تھوڑی روشنی ڈال دوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیروں فقیروں سے اک گئے ہیں، ہمیں تو کوئی یہ بات کرنے والا نہیں ملا، اور پیر صاحب مجھے کہتے ہیں، کمنٹس میں کہتے ہیں جو آپ یہ بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ باتیں صرف سلطان صاحب کے لیے ہی موتصف تھیں، یعنی ان کے ساتھ ہی منسلک تھیں، اب یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات میرے دوست، بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، ہم سلطان العارفین کی تعلیم سے بالکل
बहरा बारे उनसे हमें उनकी तालीम का पता नहीं है। उनकी तालीम असल में है क्या? आपने अपनी 1000 किताबों में तालिब सादक की तारीफ़ों को लिखा है कि तालिब कहते हैं तलब रखने वाला मुरीद, सादक यानी कि सच्चा मुरीद। सबसे पहले तो हम मुरीद होना समझें। मुरीद किसे कहते हैं? पीरों के तो हम बहुत जल्द खिलाफ हो जाते हैं। ये हमारे कह एक तरह के फितरत में शामिल है कि हम खिलाफ जल्दी होते हैं और हमायत में कम बोलते हैं। तो याद रखें मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम उस चीज़ के, क्या हम लोग सच्चे तालिब हैं? क्या हम में सच्चाई मुरीद सादक वाली वो जो तारीफ़ें सुल्तानुल आरफीन ने अपनी सारी किताबों में लिखी हैं, क्या हम में मौजूद है? हज़रत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कामल और सादक मुरीद की ये निशानी है कि वो अपने वजूद को मुकाम मुर्दा यानी वो मुर्दा, और मुर्शद मुकाम गुसाल जो गुसल देता है, यानी कि जब तक कोई मुरीद अपने आप को मुर्शद के हवाले ना कर दे, जैसे मुर्दा गुसाल के हाथ में होता है, गुसल देने वाले के हाथ में होता है, तब तक वो मुरीद सादिक नहीं है। और मैंने बहुत से मुरीदों से सुना, ओ यार मेरे पीर को तो कुछ पता ही नहीं था, यार मेरे पीर नूं तो मेरे घर दी गल दा भी नहीं पता लगा, मेरे पीर नूं तो मेरी गल दा भी नहीं पता लगा। ऐसी बातें करना, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो बंदे मुरीद ही नहीं रहते मुर्शद के। मेरी बात याद रखें, मैं इस मौजू पर पूरा एक तकरीर करूँगा। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली फरमाते हैं, जो तुझे एक हरफ भी सिखा दे, एक हरफ, अल्लाह अकबर। यहाँ तो हमने तरीक़त के, तौहीद के समुंदर बहाए हुए हैं ये आस्ताना नूरी हुजूरी पर। और मौला अली क्या कहते हैं? आज हम कहते हैं अली 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 हमारा मौला, हमारा मौला, हम अली को मानते हैं। खुदारा अली की बात भी माना करें, फिर हम सही मोमन हैं। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुझे एक हरफ भी सिखा दे वो तेरा गुरु है, तेरा मुर्शद है, तेरा उस्ताद है। हम समझते हैं सिर्फ पीरी मुरीदी हाथों में हाथ देने से बंदा पीर मुरीद होता है। ना ना, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का भी ये फरमान और मौला अली ने भी ये फरमाया कि जो तुझे एक हरफ भी सिखा दे, मौला अली कहते हैं तू उसका ग़ुलाम हो गया, वो तेरा आका हो गया। अब वो चाहे तुझे रखे चाहे तुझे बेच दे, ये उसकी मर्ज़ी है। तू उसका ग़ुलाम हो गया, वो तेरा आका हो गया। ये कौन कह रहा? मौला अली। और मौला अली ने यकीनन ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, यानी कि ये बात की हकीकत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, खुदारा पहले हम मुरीद सादक बन जाएं। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाला। पहले हमारा इरादा ये हो, हमने अल्लाह को पाना है, हमने मारिफत को पाना है, हमने इरफान हासिल करना है, हमने अपनी पहचान करनी है, हमने तलावत वजूद करनी है, हमने माँ सिवा अल्लाह सबको तर्क करना है, हमने अपनी बीवी को बीवी रखना है, उसको दीन के रास्ते में नहीं लेकर आना, दीन में हायल नहीं करना, माँ को वालदैन के दर्जे पर रखना, भाइयों को भाइयों के दर्जे पर रखना, दोस्तों को दोस्तों के दर्जे पर रखना, और हर एक का अपना अपना मुकाम रखना है। मगर इन सबसे बेहतरीन दर्जा अपने मुर्शिद का रखना है जो आपको अल्लाह तक पहुंचाता है। सबसे पहले हम देखें क्या हम इस बात पर पक्के हैं। मैंने 1000, एक दो नहीं, 1000 मुरीदों को ऐसा देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के बन गए, दोस्तों के बन गए, दौलत आ गई, गरूर आ गया, मुतकब्बर हो गए, मुर्शिद को, रहबर को, उस्ताद को उन्होंने मानना ही छोड़ दिया, और फिर बाद में कहते हैं हमारा इसमें अल्लाह जारी नहीं हुआ। मुर्शिद को 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, मुर्शिद के लिए कोई टाइम नहीं, और घर वाली के लिए सारी सारी रात जाकर झूठी बातें जिनका ना दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखिरत में कोई फ़ायदा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद दुनिया मलऊन व मा फीहा इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, ये दुनिया सारी लानत है, इसकी हर चीज़ लानत है सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के। आज हम देखें क्या हम अहले ज़ाकरीन जो ज़िक्र करते हैं, करवाते हैं, यानी कि हमारे मुर्शिद, हमारे उस्ताद, हम उनको कितना टाइम देते हैं, उनके लिए क्या करते हैं। आज यूट्यूब भरा पड़ा है जी, पीर साहब मुरीदों से खाते हैं, पीर साहब मुरीदों से माल बटोरते हैं। ये मैं यूट्यूब पर लोग सुन रहे हैं मेरे चैनल पर, कोई एक बंदा खड़ा होकर, मुझे 20 साल हो गए हैं,
पीरी मुरीदी करते हैं, घर से चली है, सारा कुछ हम सिलसिला तरीक़त चला रहे हैं। मैंने आज तक अपने मुरीदों से यही बात कही है कि गरीबों की मदद करो, लोगों की खिदमत करो, माँ बाप का अदब करो। हमने चंदे इकट्ठे नहीं किए, हमने कोई माल इकट्ठा नहीं किया, हमने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हमने अपने लिए कभी कोई हत्ता के यहाँ तक के हमने अपने अकाउंट तक नहीं बनवाए। बातें करना बहुत आसान है, मगर मुबल्लिगी के, पीरी मुरीदी के सिलसिले में आना और यहाँ पर बैठना, जिस मुकाम पर, जिस गद्दी पर, जिस दर्जे पर हम बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये किस कदर मुश्किल गद्दी है, ये किस कदर मुश्किल मुकाम है। बातें करना आसान है, मगर मुकम्मल होकर बैठना मेरे दोस्तों ये बहुत मुश्किल है। मैं इसमें अल्लाह ज़ात के हज़ार नकात बयान करना चाहता हूँ, मैं इसमें अल्लाह ज़ात के तरीक़े बताना चाहता हूँ, मैं इसमें अल्लाह ज़ात आपके दिलों पर नक्श भी करना चाहता हूँ। मगर मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप तालिब सादिक बने, तालिब सादिक बने, तालिब सच्चा मुरीद बने। सच्चा मुरीद वो होता है, सच्चा तालिब वो होता है, सच्चा आशिक वो होता है जो सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, उसके तसव्वुर में उसका मुर्शद रहे, उसका मुर्शद जो करता है वो करे, उसके मुर्शद की अदा सुन्नत नबवी हो, उसके मुर्शद की अदा में रसूल अल्लाह का किरदार हो, उसके मुर्शद की अदाएं उसके मुरीद में आ जाएं और मुरीद फिर अपने मुर्शद में फना होना शुरू हो जाए और मुरीद हर वक्त मुर्शद की तलब में रहे। मुरीद सादिक वो है जो देखे मुर्शद खाने किस चीज़ की ज़रूरत है, हाजिर करे, खिदमत करे, सफाई करे, मस्जिद बनाए। आज हम जड़ामाला में अपनी मस्जिद रसूल बनवा रहे हैं, सुबहान अल्लाह, और मदरसा नूरुल कुरान बना रहे हैं। मेरे नाज़रीन, ये हम किस लिए बना रहे हैं? ये लोगों की खिदमत के लिए, ये इस तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के लिए। नमाज पढ़ेंगे, वहाँ पर कुरान होगा, ज़िक्र व अज़कार होगा, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा होगी और ऐसे ही तसव्वुफ़ और रूहानियत पर गुफ्तगू होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर उसी मौजू की तरफ वापस आता हूँ। सबसे पहले हम तालिब सादिक बन जाएँ। मेरे दोस्त मुझे बार बार कह रहे हैं, आप इसमें ज़ात का तरीक़ा बताएँ, आप इसमें अल्लाह ज़ात का तरीक़ा बताएँ। खुदारा, पहले हम इसमें अल्लाह ज़ात करने के लिए अपने आप को मुकम्मल रेडी तो कर लें, तैयार तो कर लें, अपने दिल के बर्तन को साफ तो करें, अपने आप को पाक तो करें, अपने दिल को पाक करें, अपनी नियत को पाक करें, अपने दिल से कीना, कदूरत, हसद, गुरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस, शहवत, किबर, अना, ये सब कुछ अपने से खाने खुदा से दफा करें। जब तक आप इस वजूद को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तिलिस्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कारकर्दगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आईना है, ये वजूद जब तक आप गैर अल्लाह से पाक नहीं करते, इसमें हरगज़ इसमें अल्लाह ज़ात नहीं समा सकता। ये बात ज़हन नशीन कर लें। 50-50 साल भी आप लगे रहें, जब तक आपके दिल में अल्लाह के सिवा और चीज़ें हैं, कभी अल्लाह का इसम आपके अंदर समा नहीं सकता। आपके अंदर तब इसमें आपके लताइफ तब बेदार होंगे जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को माँ सिवा अल्लाह से पाक कर देंगे, दिल से गैर खुदा को निकाल देंगे, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल साफ पाक साफ बर्तन, उसमें दूध डालेंगे तो मज़ा आएगा। बर्तन गंदा होगा ना, बर्तन गंदा होना तो दूध डाल ले तो दूध फूट जाता है, ख़राब हो जाता है। जब हम किसी आम बंदे को ये ख़ास बातें बताते, वो दुश्मनी पर भी उतर आता है, वो खिलाफ कमेंट्स देना शुरू हो जाए, क्योंकि उसका बर्तन नहीं साफ़। तो जिसका बर्तन साफ़ होना, हम जब इसमें अल्लाह ज़ात की रोशनी का दूध उसमें डालते हैं तो वो दूध अंदर जाकर जब इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ मुर्शद की आग में वो दूध जब उबलता है ना, तो वो उबलने के बाद उस पर जो मक्खन, मलाइयाँ, फिर उसके बाद फिर जो देसी घी ये सब कुछ फिर इस वजूद से निकलता है। ये तब निकलेगा जब हम इसको पाक करेंगे। लतीफ़ा नफ्सी फिर बेदार होगा, लतीफ़ा कल्बी फिर बेदार होगा, लतीफ़ा रूही फिर बेदार होगा। कब बेदार होगा? जब हमारा दिल पाक होगा, जब हम सच्चे मुरीद बनेंगे, जब हम कामल मुरीद बनेंगे, जब हम सब कुछ अपने मुर्शद पर, रसूलुल्लाह की ज़ात पर कुर्बान कर देंगे। और जब तक हम सिर्फ महज बातें करेंगे, किसी की सुनी उसके पीछे चल पड़े, किसी की सुनी उसके पीछे चल पड़े। वो कुछ मौलवी यूट्यूब पर बड़े फितना परस्त मौलवी हैं, दिन रात लड़ाइयों वाले,
وہ اولیاء کی کرامات کا ہم ان کی باتیں سن کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ پیر ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ایسے میرے دوستو اللہ نہیں ملنا، اللہ ملے گا تو اس کے خلاف ہونا پڑے گا۔ اپنی آپ کی درستگی کر، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، تجھے لوگوں میں عیب نظر نہیں آنے چاہیے، سب سے پہلے عیب اپنے آپ میں نظر آنے چاہیے۔ آئینہ دکھانے سے پہلے آئینہ دیکھا بھی کریں، پھر آئینہ دکھایا کریں۔ تو خدارا میرے دوستو اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی زبانوں کو پاک کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے دل کو اللہ کے گھر کو پاک کریں، تاکہ اس میں اللہ ذات کی روشنی آئے اور اس میں محمد کا نور آ جائے، اور تو واقعی حقیقت میں جانشین خدا اور خلافت خدا کا حقدار بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔